Yeah, carry on. Okay, so we'll go Yeah. live. Yeah. 3, 2, 1, go live. Good evening, everyone. Sorry for the delay. We're starting our program now, and I want to apologize for the delay. Some tech issues had come up. All right, so welcome everyone to Ganga Jamani's Facebook Live series. This is our season 2, and we call it Varsha Mangal, and we celebrate various facets and aspects of the monsoon. Today, we have with us Sri Ashok Mathur. Ashok ji is someone I got to know very recently, and I have to say that it's one of those things that newly developed, like newly evolved friendships. They sort of become really like deep, and that's what's happening here. And I have to show you this book that I picked up when I was in first year college. And this is the book that introduced me to Old Delhi. It's very dated now. It's called Old Delhi 10 Easy Walks. I think a lot of students in my time used to have this book. And incidentally, it was written by, uh, non-Indians. And then, of course, lots of books have been written about Old Delhi. But my favorite books, and of course, the books that introduced you to Old Delhi, were City of Jinns. Everyone knows the book, and Twilight in Delhi. Now, why I mentioned Twilight in Delhi is because Twilight इस ये एक मार्मिक कहानी है और एक बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रेट कहानी है एक ऐसी परिवार के बारे में और ऐसे वक्त के बारे में जो अब कभी शायद हम देख ही ना पाए लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उस वक्त को जानते हैं उस वक्त के बारे में उन लोगों ने सुना है और शायद हमें उसके बारे में बता सकते हैं उनमें से बड़े बुजुर्ग भी हैं और वो लोग हैं जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी दिल्ली में जो शाहजहां वहां रहते हैं वेलकम अशोक जी गुड इवनिंग सर Thank you very much, शगुफ्ता. नमस्कार जयराम जी की and आदाब अर्ज करता हूँ. आप कैसी हैं? As the Mathus greet each other, generally. And thank you very much. And let me, on the, at the onset, congratulate you that you're doing a wonderful job of documenting, the cultures of, our country and not only Old Delhi, but different aspects of the culture of India. And thank you very much again for letting me in and giving the opportunity to talk about this wonderful city that my family has been representing since 5 generations now. And my daughter is the 6th generation inhabitant of this city, and we are still holding the fort, as we can call it. बिल्कुल तो योर डॉटर बीइंग द 6th जनरेशन सर आपकी पैदाइश क्या पुरानी दिल्ली में हुई थी उसके बारे में कुछ बताएं I was incidentally born in New Delhi, but profession you used to work for the railways and used to live in the Paharganj area, in the railway house, in this house, which is now being owned by us since about 100 years plus now. And we shifted in 1969, the year when I was born. So you can practically say that I was born and brought up in this house only. And have had the privilege. Yes, my daughter too. She was born in this house. Okay. So, Yeah. just take us on that journey, sir, जिसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं और जिसके बारे में आज हमने ये शाम Yes, we will be talking about this city, a 17th century city, which was, conceived by Shah Jahan after, having shifted the capital from Agra to Delhi. And he chose a wonderful place just, besides the Salimgarh fort and adjacent to the Nigambodh Ghat, as these are the places which probably you can identify, pre Red Fort times.
And Nigambodh Ghat was supposedly, it was believed to be a river bank on the river Jamuna, where you could get the knowledge of the Vedas by a mere dip in the holy river. So he chose that wonderful, place and started, making the Red Fort and shifted the capital. And that was the time when the composite culture of the Mughals and the great Nadir, and he conceived and made a wonderful city, which I don't call it the city. I would happily call it a civilization. Civilization in the sense that he very meticulously, sort of placed a lot of people, according to their professions and according to their, you know, the communities they belong to. Like for instance, the Jains, a lot of people came on their own because it was a very attractive city, and the empire was into wonderful trading business terms with the Middle East countries and from South East Asia, and there was a lot of national and international trade that was happening. So it attracted a lot of people from outside, and many people, many communities, they came here, settled down, probably at the behest of the king or on their own, for their wonderful reasons of profession. So the Jains, who were probably the richest amongst the communities, affluent, they were the financiers and the bankers. The Banyas, they were, trades, they were into trade. The Khatris were, in the trade. And the Kayasts, of course, the Brahmins were doing their own job, and the Kayasts were into professions, and they were mostly into the administration. So I belong to the Mathur, Delhi, typical Mathur family, and we are the ones who are representing, the community which was mostly into profession, and we were sort of serving class. We served the Mughals first, and then we served the British. And interestingly, yeah, places were allotted, or the community, the community life started in within the four walls of the Red Fort, and different places belonged to different communities, and people started living in community, and there was a wonderful syncretic, inter-community and intra-community living. We have to now sort of unfortunately refer to the syncretic lifestyles all the time, but we were actually living it, and there was absolutely no need to refer it particularly as we do it now so occasionally. So we were practically living a very syncretic life. सर, आपसे गुजारिश आई है कि आप दिल्ली की ज़बान में बोलें। अच्छा, ओके, मैं दिल्ली की जबान में बोलने की कोशिश करता हूँ। वैसे दिल्ली की जबान जो है वो बड़ी टिपिकल इट हैज अ डुअलिटी एक्चुअली, बड़ी तहजीब के साथ बोली भी जाती है, और एक कारखंदेरी जबान है पुरानी दिल्ली की, जो थोड़ी सी अबे तबे करके भी बोली जाती है, विच इज अनलाइक द तहजीब ऑफ लखनऊ, बट हाँ, दिल्ली की जबान और दिल्ली की तहजीब जो है, इट इज नो लेस देन लखनऊ। जी तो सर, आपने बताया कि यहाँ पे बड़े सारे मतलब कम्युनिटीज थी, बहुत सारी अलग अलग प्रोफेशन से लोग रहते थे। कुछ आप उनके बारे में बताइए कि मतलब क्या प्रोमिनेंट कम्युनिटीज के बारे में बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे खत्रीज थे, particularly Filsi, they were bigger tradesmen, and they came from the other side of the border now, which we call it Pakistan. They came from Lahore and from adjacent places there, but they got so much assimilated, वो इतना दिल्ली के लाइफ में इतना assimilate कर गए कि they, I think they don't anymore want to be called as Lahoris or anymore called as Punjabis, from the Punjab part of the country.
तो वो बिल्कुल दिल्ली वाले खत्री कहलाने लगे, और वो खत्री जो हैं वो आके सेटल हुए एरियाज में, जैसे कि आपका चरखेवालान, मोहल्ला दसान, बाग दीवार, छिपीवाड़ा, कटरा नील, कट, कट, कटरा नील वाज कटरा नील जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह थी, लोकेलिटी थी, जिसमें खत्रीज जो हैं वो रहा करते थे। फिर जैन्स आए। शगुफ्ता, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। Yeah, okay. And okay. And I think you are not visible on Facebook. Some people are commenting probably. No, only you are visible. Okay, so you have put it off. Yes. You put yourself off. Okay. I'm sorry. जी, So हम लोग बनिया एंड जेन्स के बारे में बात कर रहे थे। Yeah, so Jains were affluent, and they were, they started living in areas like Dharampura and Kinari Bazar, Dariba, and they became prominent places with at least about 30 plus, beautiful, one temple more beautiful than the other, which were made in Purani Delhi, the wonderful Jain temples. And the Banyas, they were living in Sitaram Bazar, Kinari Bazar, Maliwada, and Jogiwada. These were places which belonged predominantly to the Banyas. Achha. And the Jains were in Dharampura and, Kucha Seth and Dariba. And Kayasts, who were prominently into the service and administration were, their places, were Roshanpura, Kinari Bazar, Roshan Dola Katra, Chira Khana, Chowk Raiji, Matawali Gali, Pakka Katra, Kacha Katra, Khajur Ki Masjid, and Chailpuri. Many prominent, this singer Mukesh, a prominent personality, he came from this area called Chailpuri community. Yeah, so these were the areas predominantly inhabited by the Mathurs Kayas, Delhi ke. Sir, ये और and then of course और भी बहुत बड़े-बड़े लोग माथुर थे ना, जैसे काफी prominent दिल्ली के माथुर माने जाते हैं। Yeah, there were many prominent Mathurs who were Maheshwar Dayal साहब हुए, और there were lot of ये जो नई सड़क का एरिया है, you will find that was the books were being sold there, and above the bookshops were the कमरा कह लेते थे वो, chambers of many prominent lawyers actually. The Andles की families थी, बिपिन बिहारी, राजेंद्र माथुर, ये लोग सब prominent lawyers जो थे, इन सब के chambers नई सड़क पे हुआ करते थे। अच्छा। और जाफरी परिवार भी तो वहीं रहता था, इनका खानदान तो बहुत पुराना है। जी। जो ये ये मधुर जाफरी की जो फैमिली है। And then they shifted to the civil lines area. Yeah. And when people started moving away from Old Delhi, the affluent ones started moving either first to the civil lines area when the Britishers came, and then a smaller sort of an annexe that you could call it of civil lines was Daryaganj, the new Daryaganj. जी। तो वो नए दरियागंज के अंदर भी बहुत सारे जो हैं वो माथुर्स और कायस्थ और बनियाज एंड जैन्स, they shifted their residents from a lot of, Daryaganj is also a place which is predominated by all the communities. तो वहाँ भी जैन्स, खत्रीज, कायस्थ और बनिया, ये लोग जो है वो काफी शिफ्ट करे फिर दरियागंज में, पुराने में। ओके। तो बहुत ही पुरानी दिल्ली जो है वो has been a wonderful syncretic civilization that I would repeat again and again in our conversation. And yeah, and the places they got their names because of the professionals, the people who were living there and the profession they were representing. धोबीवाड़ा हुआ, चूड़ीवालान हुआ, और आपका बैदवाड़ा, कसाबपुरा, धोबीवाड़ा,
Katra Neel, indigo was being traded there, जी or and places like that. And वंडरफुल बहुत ट्रेड जो है वो बहुत जबरदस्त हुआ. चांदनी चौक वाज conceived by, designed by rather जहान आरा, द डॉटर ऑफ शाहजहां. एंड चांदनी चौक में बहुत जो है वो बड़े खूबसूरत जो है वो लॉजेस और बैंक्स और ये सब हुआ करते थे, which were which proved to be the felicitator for these trading that was happening. जी तो चांदनी चौक एक बहुत ही it became the trading place for the affluent. And उर्दू बाजार जो था जामा मस्जिद के पास, वो that was a market for the commoners. That was the market for the commoners. I see. और चांदनी चौक जो था वो एफ्लुएंट लोगों के लिए था, और उर्दू बाजार was a market which was for the commoners. So this was sort of a demographic. और फिर आर्किटेक्चर की हम जब बात करें तो the architecture was different, और बहुत ही influence होता था. Whatever new came up in the fort, जी people would try to replicate that outside as well. Yeah, so there was a very interesting life in the fort and outside the fort. शाहजहां के और फिर उसके बाद में भी जो जितने भी monarchs आए, who ruled Delhi from the Red Fort, they all had their extended families outside the fort as well. जी जी बिल्कुल. ओके. तो बहुत ही जिसको बोलते हैं दिल्ली की रौनक जो है वो डे 1 से बरकरार है. यस दैट इज ट्रू. सैडली आजकल हालांकि चेंजेस हो रहे yeah, हैं. sadly, the city is not being maintained as it should have been. It should have been, and we are very sorry that we pay no heed to our heritage, and I have no shame in saying that the city is now going to dogs, unfortunately. सो मैं ये बताना चाहूंगी सब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी कि जी कि हम लोगों के पास आज एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है. और सुबह जब मैंने आपकी कम्युनिटी के बारे में और आपके इलाके के बारे में आपके थ्रू सुना और आपकी तस्वीरें जब देखी, आई वाज शॉक्ड टू सी दिस. I didn't know of so many aspects of the communities there that are inhabit. there are these different communities have lived amongst each other so wonderfully well कि मैं आपको बताता हूँ कि ये तो अब हम जो है वो मिलना जुलना इसकी बातें करते हैं, ये तो सब हम लोग we have led a life, because culture is something that can only be represented by living. We can't only talk about it as a subject. Like we are doing it these days, that the culture is being talked in our drawing rooms, and भाई मेट्रो से यहाँ आ गए चाट पकौड़ी खाने, बस हो गया पुरानी दिल्ली. पुरानी दिल्ली का कल्चर इज unless and until you live or lead the life or lead the culture, you can't actually come to know about what real culture is all about. So that's what is happening. बहुत फर्क है. Yeah, you are right. और आज मुझे सुबह आपसे बात करके पता चला कि माथुरों के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्यूलियर हैबिट्स और ट्रेडिशंस हैं. तो दिल्ली के माथुर जो हैं वो शगुफ्ता बिल्कुल अलग हैं. बिल्कुल अलग हैं. किस मतलब माथुर जो है वो काफी यूपी में बहुत हैं, राजस्थान में बहुत हैं, लेकिन तमाम माथुर जो हैं वो दिल्ली के माथुर से जो हैं वो एकदम अलग हैं. और दिल्ली के माथुरों की जो तहजीब है वो बहुत जबरदस्त एक इन्फ्लुएंस है उनका. मुगल कल्चर का बड़ा इन्फ्लुएंस है, खास तौर पे जबान का और खाने पीने का. पीने का तो मैं नहीं कहूंगा, पीने का तो एक बहुत ही यूनिक कल्चर है जो कि जिसपे हम अभी आएंगे. जिसपे हम अभी आएंगे, बात करेंगे, जिक्र करेंगे उसका भी. We'll talk about our drinking habits
or you can say the responsible drinking habits Which of actually, Mathurs of which is the part which shocked me. I was talking about that earlier. No, that is very peculiar. It probably doesn't happen in, amongst the Mathurs of any other place than Purani Delhi as well. वो बहुत ही peculiar aspect है एक culture का हमारे पुरानी दिल्ली के बड़ा गजब है और हम पीने लोगों पिलाने के का. लिए तो मतलब it's very interesting It और आप surprises a lot. yes It surprises many actually. It अब surprises many. हम लोग सस्पेंस बिल्ड अप कर रहे हैं लोगों के लिए. No, you want me to start with some जी pictures that I would I I had think selected and let's begin with the images, sir. सर इससे yeah पहले yeah मैं एक जी एक सेंटेंस बताना चाह रही थी, एक कुछ जी बताना चाह रही थी सबको. आप जी लोग अगर हमारे साथ हैं तो आप प्लीज हमें मैसेज कीजिएगा हमारे फेसबुक फीड पर. अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हो रही है या कोई इमेज में प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं अभी, मेरे ख्याल से तो अभी सब कुछ yeah, I think we've handled this, although the screen is frozen, but let's try to show the PPT. I think that will work. okay I begin with I seek my daughter's help in starting with this PPT. Thank you, Shubhra. She's Shubhra is the thank sixth you. generation Mathur in Purani Delhi, and she's a sociologist. She's going to start. She's studying sociology at ANU. Interestingly this is Wonderful. yeah. So can you see the pictures now Absolutely. and wonderful. I begin with the first. जी This is my house actually. एंड ये बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर और वेरी बहुत ही टिपिकल आर्किटेक्चर है माथुर कायस्थ का, जो कि बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर है और इन्फ्लुएंस्ड है अगेन बाय द इस्लामिक आर्किटेक्चर. ये आप जो मेहराब देख रहे हैं ये 3 जी या दिस इज वेरी टिपिकल और ऑलमोस्ट सारे घरों में ऐसा हुआ करता था. और एक द हाउस वर मोस्टली डिवाइडेड इनटू 2, एक जनान खाना और एक मर्दान खाना. तो जनान खाना जो था वो पीछे हुआ करता था, मर्दान खाना आगे हुआ करता था. तो ये जनरली आर्किटेक्चर हुआ करता था. और एक मेन लिविंग रूम होता था जिसको हम ड्राइंग रूम अब कहते हैं, लेकिन दलान और एक आंगन हमारा है और तीनों तरफ जो है वो कमरे हैं. और ये लाखोरी ईंटों का बना हुआ है और बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है. इसमें most of the Mathurs, since they were not entrepreneurs and they were not very affluent, I think the Mathurs will excuse me, but it's a fact that we always remained the middle class and upper middle class people. We were not affluent as the Jains and Baniyas. And that is what I was about to I'm going to tell you about the difference of the architecture between the basic houses that we had and the affluent houses which were represented by the more affluent communities. तो ये बहुत ही बेसिक घर रहता था और खुला हुआ एक ओपन टू स्काई ऑल वेल हाउस है. ये वी कॉल इट ऑल होम टू द अदर. आई हैव टू कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन इट इज रेनिंग विद इन द हाउस ओनली. और ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है. इसमें कोई बहुत ही जो है वो यू वोंट फाइंड बेल्जियन artifacts or Belgian chandeliers or tiles from England or wherever. बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, बट fortunately we have been able to maintain it as as it was, and we haven't made much of the structural changes in the house except for few because of the reasons of repairs. Right. I come to the next picture. तो इस आंगन की बड़ी खूबियां हैं सर. अभी हम लोगों को सबको बताएंगे कि किस तरह से ये आंगन मल्टीपर्पज आंगन है और किस तरह से ये आंगन कितनी बढ़िया तरीके से आप यूज करते हैं. आंगन अब वैसे हमेशा से बहुत मल्टीपर्पसली यूज हुआ, स्पेशली फॉर द वेडिंग्स दैट टुक प्लेस. तो वो बहुत ही कम्युनिटी लिविंग थी. माथुर्स जो हैं वो actually all the communities of old Delhi, they married amongst each other only. They didn't most of them for generations together didn't marry outside their communities. तो बहुत ही मतलब किसी का ननिहाल जो है वो अगली गली में हुआ करता था, किसी का ससुराल जो है वो अगली गली में हुआ करता था. तो सब कम्युनिटी लिविंग बिल्कुल बहुत ही आसपास थी.
और ऐसा हुआ करता था कि शादियां जब होती थी तो कुछ बड़े घर थे सिलेक्टेड जिनके आंगन से जो है वो शादियां भी हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो नहीं होता था जी और बस एक ये जो है अपना आंगन में कुछ थोड़े से फूल सजा दिए और ऊपर एक चंदोआ टांग दिया। चंदोआ पॉसिबली अगर किसी पिक्चर में आएगा तो we'll talk about that also. It's there. Yeah. So we'll talk about the चंदोआ also. जैसे ही चंदोआ तन जाता था, जिसको बोलते थे चंदोआ तानना, तो वो चंदोआ जैसे ही तन जाता था तो एकदम खूबसूरती घर में आ जाती थी और एकदम फेस्टिविटी शुरू हो जाती थी उसके नीचे। तो हाँ, तो किसी की भी शादी होती थी तो इनफॉर्मली बस आंगन और घर दे दिया जाता था, तो बस किसी के घर से बारात चढ़ गई और किसी के घर में रिसेप्शन हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फोटो इसलिए घर देखते से हैं जो गली से इसी दूसरे से गली में जो है related वो yeah this is me sitting on in with my mama और बैकग्राउंड में मेरे ग्रैंडफादर हैं अच्छा और ये हमारे घर से उनकी बारात जो है वो चढ़ी थी। अच्छा और और जो है वो कुछ दी बारात वेंट इन इन जस्ट द नेक्स्ट स्ट्रीट ओनली। किसी के घर में जो है वो हमारी मामी ने वो ले रखा था, उनके घर वालों ने जगह, तो बस बारात वहां से वहां गई थी। तो दिस वाज हाउ frugal I would say it and simple lifestyles that we had it during तो those ये जो times. आगे घोड़े के आगे बैठते हैं इनको क्या सरबाला बोलते हैं? हाँ, इनको सरबाला बोलते हैं। अच्छा, तो आप सरबाला थे इस शादी में? yeah. I think I was just about 6-7 years old. You're wearing a lovely sherwani, I have to say. Thank you very much. और सर्दियों की शादी है, इन्होंने भी शॉल ओढ़ी हुई है सबने। या और एक और हम आपको बताते हैं, ये जो शॉल है ये बहुत ही जो है वो इसको दुशाला बोलते हैं जी। और दुशाला जो है वो जरदोजी का और बहुत ही खूबसूरत, किसी में तो बहुत ज्यादा, किसी में कम बेल का वो हुआ करता था और ये प्योर पश्मीना का हुआ करता था जी। और इसको जो है वो शादी में, चाहे वो लड़की की शादी हुआ करती थी तो लड़की को उड़ाया जाता था और जब और ये बिल्कुल जनरेशन से चलता आता था ये मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, जो है जितना पुराना दुशाला हुआ करता था उतना ऑस्पिशियस समझा जाता था। So and these dushalas actually belong to the ladies of the house or the elder lady of the house, but it was very big in size. Right. Big in size, gent size का होता था, but the ownership was it was owned by the lady of the house. जी हाँ। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये भी आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल। और आजकल हम लोग प्राइवेसी, साउथ दिल्ली वालों के पास इतना बड़ा रूम, इतना एरी रूम, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और ये देखिए आपकी हम लोग अब प्राइवेसी की बातें करते हैं कि भाई प्राइवेसी नहीं मिलती, तो ये जो आर्किटेक्चर था मकानों का वो that was based on the fact that the houses should have ample of air and sunlight. तो मुझको अभी कभी जो है वो शुभ्रा मेरी बिटिया जो है वो कहती है कि पापा घर में दीवारें कहाँ हैं, दरवाजे ज्यादा हैं। और कुछ में तो दरवाजे हैं ही नहीं, और जो घर में अब दरवाजे हैं वो एकदम अकड़ गए हैं तो वो बंद ही नहीं होते हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारा ऊपर का रूम है जिसके अंदर 1 2 3 4 डोर्स हैं इसमें। यू कैन सी 3 बट देयर आर 4 डोर्स। ये फोल्ड वाले जो डबल डोर्स होते हैं। डबल डोर्स वाले भी होते हैं, सिंगल डोर्स वाले भी होते हैं। डबल डोर्स वाले हमारे नीचे हैं, नीचे के कमरों में। मेरे ख्याल से आप इसी कमरे में बैठे हैं इस वक्त। या मैं इसी कमरे में बैठा हूँ। यू रिकॉग्नाइज्ड इट वेल, यू कुड सी बिहाइंड द बुक्स। या विद द बुक्स एंड द आई एम सिटिंग देयर ओनली। तो ये एक ऑल वेदर हाउस और आई वुड से कि ये हमारे एंसेस्टर्स का एक far sighted vision था कि it catered to how many people. I mean, there were about 27 to 20 in between 25 and 30 people who were living in this house together as a joint family once. And
तो आप ये देखिए कि कितने जनरेशंस के बाद तक जो है हम लोग जो है वो इस घर को बरत रहे हैं, बिकॉज बहुत बढ़िया, यू नो दी farsighted visions of the elders. बहुत And बढ़िया डिजाइन। we are thankful that, we are really thankful to our elders that who had made, who had left such a beautiful and a wonderful heritage for us. अगली तस्वीर में आप लोगों की यस आई थिंक Well, yeah, this is a little clearer picture. This is a little clearer picture. ये जो ये तो मतलब टिपिकल माथुर फैमिली का वो होना चाहिए चिन्ह, है ना? ये जो नीचे बैठ करके मतलब ये या एम्ब्लम है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कम्युनिटी के बारे में बताता है. दिस जी। टेल्स the love for the music which our community has, the sort of instinctive love for music that we have it. और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं. शगुफ्ता, घर में अगर कोई नई बहू आती थी, हाँ, if any girl if any boy used to get wedded, तो the शादी it के was लिए। mandatory for her to learn the either a single bhajan or she should have शादी के लिए और शादी के बाद गाने के लिए. तो वो बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो घर में जब शादी होकर आते थे, विदा होकर आती थी, तो उनको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई बाबूजी एक भजन सुनाओ या कोई गाना सुनाओ. तो बाजा और तबला जो है वो एक परमानेंट फिक्सचर माथुर कायस्थ के घरों का हुआ करता था. सबके घर में बाजा और तबला जरूर मिलता था. और जो थोड़े से और शौकीन हुआ करते थे उनके यहाँ सितार और तानपुरा. तो ये एक छोटी सी जो है वो बैठक कुछ लास्ट ईयर हम लोगों ने करी थी टू रिवाइव the culture of our family and our this thing. तो इसमें अरमान दहलवी और शुभम भारद्वाज, they are singing Drupad, and Salman Bhai is playing Pakhavaj and Maliha Surbahar. Unfortunately, Arman's mother just passed away, Sadia. जी 2 दिन पहले. But we had a wonderful session and it was जिसको बोलते हैं ना मंत्र मुग्ध कर देने वाला सेशन था. It started at about 9:30 in the night and lasted till about 1:30. वाह. And और फॉर्चुनेटली जो है वो ईद से पहले के दिन थे रमजान के. तो हम जब 2 बजे के करीब सब निपटा ये सब, तो खाना खाने की बात हुई. तो फिर हम लोग जो हैं वो 2-2:15 बजे जामा मस्जिद गए और फिर जवाहर पे हम लोगों ने खाना खाया. Can you have that kind of a wonderful life anywhere else? No, you cannot. And right now, when you're talking about this in COVID times, I am feeling very, very jealous. I mean, no, you're feeling jealous, and we are feeling sort of caged actually. क्योंकि पुरानी दिल्ली के लोग जो हैं वो वैसे ही घर में बैठ नहीं सकते हैं. आपको रौनक जो है वो बाहर ज्यादा नजर आएगी, पान की दुकान पे, शाम को बाजारों में. और तो वो एक पुरानी एक आदत है लोगों की. यही रौनक है पुरानी दिल्ली की. अगले पिक्चर. This is another angle of the ये हमारे घर में जो है वो होली जलाने की प्रथा है. तो जो कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में ही होली जलाई जाती है. होली जलाते हैं और होली के अंदर जो है वो बाल और बूट जो है वो दी ग्रीन wheat buds and the green chana buds, they are offered as prasad. तो वो चारों तरफ घूम के और खूब गाना बजाना होता है और खूब होलियां गाई जाती हैं और खाना पीना होता है. हम लोगों के यहाँ कायस्तों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जहाँ थोड़ी सी खुशी होती है वहां शराब की बोतल खुल जाती है. और क्या है कि वो whenever there is a little bit of joy in the family, you tend to open the bottle and you offer it to the goddess first. तो we offer it to the goddess Kali first because हम लोग दिल्ली के माथुर कास्ट जो हैं वो कालका जी और काली के जो हैं वो मानने वाले लोग हैं सब. अच्छा. और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब हम लोग
we are partly rever the Durga and Kali, partly rever the Lord Krishna as well. हम लोग काफी दिल्ली के जो है वृंदावन बिहारी जी के यहाँ काफी लोग जाते हैं. तो एक ऐसी कम्युनिटी जो कि is balancing themselves in between the vegetarian lifestyle and the non-vegetarian lifestyle. People find it this kind of culture in our family only, in Delhi ke Mathur only, not anywhere else. I'm being very particular about the जी और वैसे ही हम पुरानी दिल्ली की बात कर रहे हैं. This is another little bit of close up. या और ये घर में शुभ्रा की कुछ फ्रेंड्स अगर जब आते हैं तो एक दस्तरखान बिछ जाता है, और डाइनिंग टेबल का रिवाज जो है वो बहुत बाद में आया है असल में जी. तो सभी लोग जो है वो पहले जमीन में बैठ के ही खाते थे और दस्तरखान बिछते थे, और वो अब अगर मौसम अच्छा है तो सब लोग आंगन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना कमरों में दस्तरखान बिछते थे अपने जमीन पे बैठे, और जो भी कुछ है वो बना है वो खा के, और पहले जेंट्स खाते थे और फिर लेडीज जो है वो they used to sit. So so this was the culture. This is one aspect of the culture, and this is also an influence from Rajasthan. These saris I would like to particularly talk about. ये चुंदरी बोलते हैं इसको, and every bride has to get it from her home. This is one of the important object that any bride would get it when she's marrying. तो किसी जमाने में तो सच्चे सोने के और इसके ये ब्रोकेड वगैरह हुआ करते थे गोल्ड के. These borders used to be of pure gold once upon a time. And but now it's जरी का काम, and the छींट का जो है वो उसमें काम हुआ है. And this is very prominent. ये जो है वो करवा चौथ की पूजा हो रही है. अच्छा. पूजा में. And में भी ऐसा ही है. Yeah. So let's see. This is another picture wherein the ladies are wearing the chundari that I wanted to show you. Here comes पुरानी दिल्ली के माथुरों का एक बहुत ही typical culture that whenever there is a gathering, the most honored person is the jamai of the house, or the husband of the daughter of the house. Howsoever young he may be, but he is the most honored guest. And agar inki absence mein the eldest one is the most honored person to open the bottle and offer it to the goddess first, and then make drinks for everybody. And even the ladies are being offered a drink, and the elder person of the family would offer the drink to all the young ones, and even the ladies of the house, bahu sabko di jati hain. Or if somebody is interested in drinking, they can make their own drink and share it with the others together. और जो तहजीब एक है, एक यूनिक तहजीब है कि हाथ में लेके और उसको माथे से लगा के एज अ प्रसाद, and you have to offer it back to the elder and touch his feet. अच्छा. So the ladies की तहजीब ऐसी है, और जेंट्स की तहजीब ये है कि जब when the elder is offering him a drink, you have to take it as a honor, drink it, and अदब से जो है वो ली जाती है और अदब से ही जो है वो वापस करी जाती है. And we have a culture of sitting together at house and drinking together. Men and women, and both? Men and women, all of us. Achha. Well, that's very nice. Yeah. So we drink together, we make merry together. खाने पीने का बड़ा जोर है हम लोगों की. जी माथुर का खाना तो बहुत प्रसिद्ध है. हाँ बिल्कुल. नॉनवेज जो है वो खाना ऑलमोस्ट डेली जो है वो किसी जमाने में जो है वो नॉनवेज बना करता था हर घर में. अब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ किसी टाइम में रोज बनता था. एक पिक्यूलियर एक कसाई जो है वो चीरा खाना एरिया में थे, शरीफ के नाम से. He used to serve the whole community of Purani Delhi Mathurs. All the Mathurs used to get their mutton from that shop,
एंड एक ये थे और एक हाफिज साहब थे दरियागंज में। तो दरियागंज में रहने वाले लोग हाफिज साहब से लिया करते थे, और जो पुरानी दिल्ली में रहने वाले माथुर थे वो शरीफ से लिया करते थे चीरा खाना अच्छा। बना के। संडेज को यू हैड टू गेट योरसेल्फ। अब आप किसी को जो है वो कोफ्ते बन रहे हैं, तो किसी के यहाँ पुलाव बन रहा है संडे को, तो किसी के यहाँ कुछ बन रहा है, तो एवरीबडी। अदरवाइज कोई पाव कोई आधा पाव भी बोलता था, और जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती थी फैमिली के अकॉर्डिंगली वो बता देता था, एंड यूज्ड टू डिलीवर, एंड द मटन यूज्ड टू गेट मेड ऑलमोस्ट एवरी डे। एंड सो ये एक बहुत ही पर्टिकुलर, एक बड़ा ही यूनिक एस्पेक्ट है हमारे कल्चर का, पुरानी दिल्ली के माथुरों का। लेट अस टॉक अबाउट द अदर पिक्चर। ये होली का खाना, ये सब हम लोग जो है, वी आर गैदरिंग माय सिस्टर्स एंड माय सिस्टर्स फैमिली, एंड one of my brother is there from Bombay in this picture with my father. Everyone's got तो ये gulal. एक रंग पाशी का एक जो है वो एक फेस्टिवल होता है बिफोर होली, wherein the Jamais are again honored, and they are asked to sprinkle the colors on the family members, and we are not supposed to sprinkle on them. We can only sprinkle on them. पहले ठाकुर जी को, पहले भगवान को जो है वो कलर स्प्रिंकल किया जाता है, उसके बाद फिर घर में जो है वो सबको, so it's sort of a sign to start playing the Holi, and the honor is again given to the Jamais of the family, और वो पहले आके जो है वो सबके ऊपर रंग छिड़कते हैं, और सबको जो है वो खाना पीना होता है, and that is that marks the beginning of Holi. Here it's on this day it is a one-way traffic. Only the Jamais are supposed to sprinkle the color, not us on them. Yeah. Although now people have started doing the other way as well, but generally it's one way. बता रहा था हमारे बिरादरी में ये होली की शाम का वो है, and it is preparing for the evening गाना बजाना and burning of the, और बिना गाए बजाए जो है वो कोई गाए बजाए और खाए पिए मतलब पुरानी दिल्ली के माथुरों का काम चलता नहीं था। अभी भी this culture is still prevailing wherever the Mathurs are. They are in big or small way, they are still continuing with it. But since it was a community living, बाहर से भी लोग आते थे सब घर में, और खूब रौनक हुआ करती थी। ये हमारी कम्युनिटी का एक और बहुत ही पिक्यूलियर वो है। मैंने आपको बताया कि हम लोग वी आर रेवरिंग दी कालिका देवी जी। तो कालिका जी मंदिर, भैरव मंदिर, which predates the existence of Shahjahanabad. तो ये जब से हम लोग यहाँ हैं, जब काफी साल से 100 years plus now, I think we have been sort of conglomerating at कालिका जी मंदिर, और वहाँ जाके दिल्ली के माथुर जो है वो 3 फेस्टिवल्स करते हैं। एक रसोई का फेस्टिवल होता है on the last Sunday of every year, दिसंबर में कैलेंडर ईयर। तो वहाँ कालिका जी में जो है वो शराब का प्रसाद और नॉन वेजिटेरियन खाने का प्रसाद जो है वो सब लगता है। और ये मना नहीं किया जाता वहाँ पर ऐसे? नहीं, वहाँ it is allowed there. It is allowed in Kalka Ji. It is allowed in Kalka Ji. You can offer alcohol and you can offer the non-vegetarian food. ये तैयारी हो रही है प्रसाद लगाने की और प्रसाद जाने की कालका जी मंदिर में। इधर तो ये आपने बताया कि 3 ओकेजन्स पे जाते हैं। 3 फेस्टिवल्स हैं ये रसोई का, और एक सावन में खीर होती है। People again conglomerate there and make खीर and offer it to the goddess. अच्छा। और और फिर एकदम इसके बाद जो है वो एक कढ़ाई होती है, उसको बोलते हैं लौकड़े की कढ़ाई। तो उस कढ़ाई में जो है वो जनरली it used to happen कि लोग जो है वो पहले रसोई करते थे, फिर उसका कुछ बच जाता था या कुछ होता था तो एक कढ़ाई में वो एक और इवेंट कर देते थे जस्ट आफ्टर रसोई। अच्छा। तो उसमें यूज हो जाता था। बट देन as time grew, it was considered to be another third festival, and of course it was always a festival
थर्ड फेस्टिवल, बट उसको रेगुलरली जो है वो करने लगे हम लोग. तो these three events, that दिल्ली के माथुर एंड कायस्थ are doing it in कालका जी मंदिर every year. और Right. यहाँ सिर्फ केवल मर्द जाते हैं या इज इट? नहीं, सभी जाते हैं. रसोई में कम से कम we are gathering these days, we are gathering about more than about 800-900 people every year. अच्छा. Oh, there's lots of food. Now this is what I was telling you, that on the left you will see a Jain temple, जी. and on the right you will see is a house that belongs to a Jain family, and हाँ. you will find, I was telling you about कि हमारे जो घरों का आर्किटेक्चर था वो ऐसा था कि हर घर में बैठक हुआ करती थी. और बैठक was घर के बुजुर्ग जो हैं वो बैठते थे बैठक में, और वो generally it used to open out in the street, so the doors of that बैठक would open on a chabutra generally, and आते जाते लोग जो हैं वो जयराम जी की और greetings exchange हुआ करती थी, and everybody could see that the elders are sitting there, and बैठक्स were one very important place where the whole house used, it was sort of a common room and a drawing room where all the people will gather together, and वहीं पर जो है वो बाजा तबला रखा जाता था, और किसी की शाम को गाने की क्लास हो रही है घर में, कोई लड़की है तो, और अदरवाइज जो है वो किसी का जरा सा भी मूड आया तो चल भाई आओ बाजा तबला निकालो, गाना गाएंगे या अच्छा. भजन गाएंगे कुछ. हाँ, तो वो होता था. But these were missing in the affluent houses of the Jains and the Bengali. They used to socialize differently. अच्छा. We used to socialize quite a lot in amongst our own houses inside. Of course, they were also doing it amongst their families, but they did a lot of socializing outside. The affluent Jains and Baniyas and the Khatris, they made wonderful dharamshalas, temples, school institutions, and they were they did their socializing outside. तो हम लोगों के जैसे घर में हो जाता था ये सब, वो लोग धर्मशालाओं में काफी Right. they used to get together in these dharamshalas and in these schools. So they were spending a lot of money on socializing. Since in this architecture, there was an absence of this better concept, because they the security was a larger aspect. और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा आप, ये एक और ऐसा एक घर है जिसके अंदर झरोका है, आप देख रहे हैं. तो people of course were interested in what is happening outside the street. कोई प्रोसेशन निकल रहा है, कुछ हो रहा है, तो अंदर से लोग बाहर जरूर देख सकते थे, बट बाहर के लोग जैसे कि हमारे घरों में होता था कि बैठक भी दिख रही है और बाहर से जो है वो सब कुछ दिख रहा है और ग्रीटिंग्स भी एक्सचेंज हो रही हैं गली में चलते निकलते, वो दैट कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर in their houses. So security was one reason because of the affluence, and this one way traffic to for the people from inside the house could see what's happening outside, but people from outside couldn't see what's happening inside, was one architectural phenomena that it differentiate between our houses and their houses. ये देखिए आप, हम लोगों के माथुर्स के घर में इतनी अच्छी ये facades you would not see it. अच्छा. That's the difference between houses like these. They spent, and very interesting thing that there was such wonderful, इतना अच्छा aesthetic value होता था लोगों में. People had such wonderful aesthetic sense that even if the house facade was not visible from outside the main street, they still used to put in a lot of money on the facades of the houses, and of course inside they it depended upon what's your financial status, but according to that they beautified their house from inside. But these people, despite the fact that it was not visible many times from outside, while people were walking to appreciate anything, they still had they still used to put in a lot of money on decorating the facades of the houses with these intricate work, and ये देखिए आप, look at the beauty of Beautiful. With this, as you said, was missing in the Mathur home. They were rather austere. Interesting.
सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, एक मिनट। I was talking about the temples. जी। Yeah. Can saying you hear me now? Yes, I can hear you now. Hello. जी, आप बिल्कुल क्लियर आइए आप। Yeah, so this is one. These are temples which I was telling you that a lot of Baniyas and Khatris, they put in a lot of money making these beautiful temples around. On the left, you see is a temple which is there in Chudiwalan area, belonging to a very prominent Baniya family of Delhi. और ये लोग अभी भी मेंटेन करते हैं इसको और वहाँ पे अभी भी छोटे मोटे तौर पे जो है वो इवेंट होते रहते हैं हालांकि काफी कुछ लाइज इन निग्लेक्ट नाउ बट this look at this beautiful darshans and so this was yeah this is one very huge temple called लाडली जी का मंदिर जो कि खत्रियों का हुआ करता मतलब जो कि खत्रियों के कटरा नील में है ये एंड इट इज वेरी ह्यूज और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है वो राधाष्टमी के दिन जो है वो उत्सव होता है और जन्माष्टमी में उत्सव होता है और एक बहुत ही प्रोमिनेंट उत्सव जो यहाँ होता है वो होता है नरसिंह लीला का नरसिंह चतुर्दशी पे एक बहुत ही फेमस नरसिंह लीला यहाँ हुआ करती थी जो कि अब कुछ साल से बंद हो गई है बिकॉज यहाँ रिहाइश खत्म हो गई people had are unable to put in a money they are not able to patronize it because of the absence of people living here सब रिहाइश जो है वो हर जगह खत्म हो रही है हैपहैज़र्ड इलीगल कंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग प्लेस बट दिस इज वन वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल और खत्रियों का कटरा नील में एक बहुत ही जो है वो यूनिक चीज थी कि उन लोगों के घर बहुत बड़े बड़े घर थे ह्यूज कटरा नील में इतने बड़े बड़े घर थे कि आप 2-3 ट्रक खड़े कर लीजिएगा आंगन में इतने बड़े बड़े घर हुआ करते एंड और बाग दीवार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने खोली हुई थी और ये सब कटरा नील के जो इतने बड़े बड़े घर थे हवेलियां थी बहुत टाइल्स the beautiful tiles that you see here these are all tiles that had come from Belgium or from England and Europe और कुछ घर तो इतने एफ्लुएंट थे कि वहाँ bespoke काम होता था they used to tell कि भाई हमें ये नक्काशी चाहिए हमें ये डिजाइन चाहिए अपने तो they used to get the wrought iron designed particularly bespoke wrought iron designed from England जी वो कृष्ण मुरलीधर कृष्ण बनवाते थे या राधा कृष्ण या now this is also ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं this is now this was is very recently about 3 years back only discovered by ISKCON that Prabhupada ji was praying in this temple in the another Khatriyon ka area called Chipiwada and even the ISKCON people didn't know that Prabhupada ji started the journey of ISKCON started from this temple here. It's a little unfortunate that I could not click this picture, showing the dome of the temple, which is now reconstructed by the ISKCON. And there is a picture behind it of Prabhupada ji. I can see the angle where both. You can. So this is the left picture on the left. Right में जो ठाकुर जी हैं, I do. Yeah, the left one is belonging to the temple which has now been discovered that was once Prabhupada ji, the founder of ISKCON, Hare Rama Krishna's movement, started from here. And on the right is a very beautiful darshans, and these are darshans of the idol which was revered by no less than Kunwar Shyam ji. Kunwar Shyam ji was a great poet. I'll tell you about 3 people who belong to Old Delhi. Prabhupada ji I told you. Then Kunwar Shyam ji and Charan Das ji. चरण दास जी की भी बगीची है और कुंवर श्याम जी के ठाकुर जी हैं ये and कुंवर श्याम जी wrote many pads which are being sung by the Hindustani classical doyens till today. और एक उनकी होली बहुत मशहूर है बाट चलत मोहे चुनरी रंग डारी रे कैसोरी बेदर्दी बनवारी
ऐसोरी निडर करत डरत ना कहूं के किधर, अपनी धींगा धींगी करत है निडर, हे मोरे राम हे मोरे राम। वाह, ये इतना इतना सुंदर जो है ये होली जो है ये हमारे कायस्तों में पुरानी दिल्ली के खास तौर पे हर फैमिली में आपको गाने को मिलेगी ये होली में। और ये कुंवर श्याम जी के ठाकुर जी हैं विच स्टिल रिजाइड्स इन ओल्ड दिल्ली धर्मपुरा एरिया। अच्छा, और या ये इतने सुंदर दर्शन है उनके। ब्यूटीफुल, और एकदम मतलब बढ़िया पीताम्बर नीचे। और closer पे थोड़ा जी, this is another close up of the temple, one of the lovely. temples in पुरानी दिल्ली। काम देखिए आप, intricate ये जगन्नाथ जी का मंदिर है जो कि एस्प्लेनेड रोड पे है। और ये भी जन्माष्टमी के भी जो सेलिब्रेशंस हैं पुरानी दिल्ली में बहुत जबरदस्त होती हैं साहब। कई घरों में जो है वो इतनी जबरदस्त सजावट होती है खिलौनों की और सबकी की दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और अच्छा, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। हाँ, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है एस्प्लेनेड रोड पे, बहुत फेमस जगन्नाथ जी की यात्रा जो रथ यात्रा है वो निकलती है। और ये एक टेम्पल है ओन्ड बाय अनदर बनिया फैमिली ऑन द एस्प्लेनेड रोड, जो कि हर दिवाली पे जो है ये सब शैंडेलियर वगैरह साफ होते हैं। और हनुमान जी का और रामचंद्र जी का मंदिर है ये। अच्छा, और राधा कृष्ण का, रामचंद्र जी का मंदिर, और बहुत ही बढ़िया सजावट होती है जो कि देखने लायक होती है यहाँ पे। और पूरी फैमिली जो है वो मिलके काम करती है सजावट का। और हजारों लोग देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो एक amongst the festivals of पुरानी दिल्ली, this is also one of the aspects of the culture। और ये देखिए लेफ्ट में किनारी बाजार में जरदोजी का काम हो रहा है। हालांकि किसी जमाने में हाथ से हुआ करता था, लेकिन ये अब मशीन से भी हो रहा है, हाथ से भी करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन किनारी बाजार। ये सब जरदोजी का काम, ब्लैक कलर के शनील पे सिल्वर कलर का काम चल रहा है इस समय। जो एक वाह, पिक्चर है जो व्हेन आई क्लिक्ड इट, और राइट में आप देखेंगे सवारी जो है वो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खत्रीज और बनियाज जो हैं दे वर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर रिलीजियस पर्पसेस एंड फॉर अदर सोशल रीजंस। तो ये सवारी जो है ये भी एक जबरदस्त प्रोसेशन जो कि सालों साल जो है वो निकलता है नवरात्रों में। अच्छा, दशहरे से 10 दिन पहले, 10 दिन रामलीला सुबह शाम निकलती है, एस्प्लेनेड रोड से स्टार्ट होती है और रामलीला ग्राउंड तक कल्मिनेट होती है। फिर रात को फिर वहां से वापस चलती है रामलीला ग्राउंड से और साइकिल मार्केट में कल्मिनेट होती है। तो ये उसका एक सवारी का सीन है। और इस सवारी में मैं आपको जो है वो बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, फिर वही सिंक्रेटिक लाइफस्टाइल की बात करेंगे, जिक्र करेंगे कि भिश्ती हुआ करते थे, जी, who were Muslims, जी, and those bhishtis were the ones who were sprinkling water before the procession। तो वो राइट, प्रोसेशन के आगे आगे जो है वो स्प्रिंकल करके चलते थे। और प्याउएं तो खैर चलती थी, जी, और लेकिन भिश्ती जो है वो इतनी शिद्दत से जो है वो दे यूज्ड टू स्प्रिंकल द वाटर, कि एज इफ पता नहीं उन्हीं के भगवान का काम हो रहा है। और बड़ा भाग भाग के जो है वो, क्योंकि खत्म हो जाती थी मशक, तो दूर दूर से भर के लाते थे। बिकॉज वन इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट दे वर नॉट अलाउड टू फिल वाटर फ्रॉम एवरी टैप, हाँ, फ्रॉम एवरी पब्लिक हाइड्रेंट। तो वो बेचारे जो है दूर दूर से कुछ ऐसे बर्मे थे जहां से जा जाके भर भर के लाते थे, भाग भाग के, और स्प्रिंकल करते थे और पूरे सड़क पे छिड़काव हुआ करता था। तो वाह, जिससे कि वहां जो खड़े हुए लोग उन पे धूल ना आए या ये सब। जी, तो बड़ी शिद्दत से काम होता था। हमारी दादी जो है वो जरूर 1 रुपया हमारे हाथ में बेचती थी कि भिश्ती को देना है। वाह, वाह, तो माय दादी, वो एक सदका के भी कहलाता था, और एक जी, इट वाज एन ऑनर टू ऑनर दीज पीपल हु वर इन। तो ये बहुत ही सिंक्रेटिक लिविंग है। अब ये इसको क्या बताया जाए, ये तो हम लोग जिए हैं, हम लोग वी हैव लिव्ड सच काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। बिल्कुल, कोई ये किसी को रेफर करने के या ये जिक्र करने की बात नहीं है, बट दिस इज हाउ वी हैव लिव्ड इट। And these were the different aspects that are telling. I mean, every picture has got a wonderful story about different communities, about different inter-community and intra-community
community I'm talking about. जी Inter-community में आप देखिए कि the Baniyas amongst themselves were the ones who were organizing it. But look at look at the intra-community that was involved in it. Even the हम्म Muslims were involved in the seva. They were हम्म sprinkling water. Yeah. तो इतना इतना अच्छा लाइफस्टाइल था और कभी था क्या मतलब अभी तक चला है ये चलता आ रहा है। ये कितनी पुरानी चलता है। तस्वीर है ये वाली? ये तो अभी 2 साल पहले की है, पिछले 2 साल पहले की है शायद ये, अच्छा बट या बट रामलीला जो है वो it's been on since about more than 100 years plus, and ये सब फेस्टिवल जो हैं वो that it had been happening since the age of Shahjahan, and then later on Bahadur Shah Zafar actually felicitated such बिल्कुल yeah, he felicitated a lot of such kind of get-togethers in the Red Fort and outside as well. So here is the I think end of this PPT, and नेक्स्ट probably let's start with the you would like to start with the other one as well, yes and let's then go we'll there talk about because I think that's where we have the as the tasting. pictures are actually the pictures are talking about a lot, and Yeah. then yeah, and and maybe we'll start the next PPT and talk about it as well. तो एक बात बताइएगा जब आप लोग बड़े हो रहे थे तो आप लोग स्कूल कौन से स्कूल जाते थे आप लोग आसपास में या डिड यू गो बाय बस और कैसे जाते थे स्कूल वगैरह? स्कूल में मेरा स्कूलिंग हैप्पी स्कूल से हुआ है, और या एंड देयर वर वेरी लेट मी सी ओके तब तक मैं ही कुछ सुनाती हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो पुरानी दिल्ली में था. हाँ प्लीज let's प्लीज yeah so that you can fix this so very या interestingly मैं कभी पुरानी दिल्ली गई नहीं थी और मेरी मदर बहुत डिस्करेज करती थी वहां जाने के लिए आई डोंट नो व्हाई तो बट जब होता है ना कि शेर के मुंह खून लग जाता है तो ये हुआ मेरे साथ पहली बार ओके आई मैं एंड यू वोंट बिलीव इट अशोक जी आई वाज अ वेजिटेरियन तो मुझे तो मतलब हाँ कोई फूड वगैरह का कोई इतना वो नहीं था जो मुझे ड्रॉ करेगा लेकिन वो उसका जो एक एनवायरनमेंट था जो उसका वहाँ का एक एम्बियंस था वहाँ के लोग थे और मेरी एक दोस्त थी कॉलेज में आयशा बेगम और वो उनकी फैमिली मेंबर्स जो ये आप ही के इधर शरीफ मंजिल में रहते हैं वो लोग तो मतलब कि काफी लोगों से मिली मैं और सबके सब बड़े अलग थे मेरे वर्ल्ड से तो मैं एकदम इमीडिएट जिसको कहेंगे ड्रॉ और मतलब बहुत अट्रैक्टेड हो गई और फिर उसके बाद तमाम जितने भी वॉक लीडर्स थे उनके साथ वॉक्स पे आते थे और अभी भी जब कभी होता है पुरानी दिल्ली में कोई भी इवेंट हम मिस नहीं करना चाहते हैं कुछ है इसके बारे में कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है पुरानी दिल्ली में और आई थिंक चाहे जो मर्जी हो जाए अभी ये बहुत रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है और फोर्स्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है वो मुझे लगता है कि No, actually, perpetual governments have failed to protect the heritage, and we have been, very. It's been very sad that none of the, just a moment. I think there is some problem. I think that was the only one. PPT 2. No, there on the. Yeah. This is the one. Yeah. Reverse. और आज आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया व्हेन यू सेड दैट अपनी लड़कियां कोई बहाना नहीं चाहता नो मैटर हाउ एफ्लुएंट फैमिलीज आर इन ओल्ड दिल्ली हाँ. This is very sad, because the public convenience and all these these are all very they are all very sad. They're all very sad. The situation of the public convenience and the amenities, they are all very sad here, and nobody wants to sort of wed their or give their daughters in this area because अब बाहर का लाइफस्टाइल जो है कन्वीनियंट हो गया है यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा जो है वो
it's not an easy lifestyle here. So that is one aspect that is, the sociologists are probably it's a matter of their subject, and Ji. so can It is can a you see matter the? of. Are you showing the screen now? Yeah, I'm sharing the screen. Okay, let me do it. Yeah, we are. Can you see the screen, Shagufta? I can. I just have to change it in a quick bit, which I did. Right. Yeah. So we were on this last picture, and now we'll come. आपने education institutions की बात करी तो very interestingly, let's touch that topic. And it was in 1880s and 90s that many educational institutions cropped up on the basis of probably religious this thing like St. Stephen's College came up in Kinari Bazaar, and it was started by the Cambridge Mission, and Hindu College, by the Sanatanist Hindu lines. They started Hindu College, and the Anglo-Arabic school at Ajmeri Gate was already there. It was a institution that had wonderful collection of Farsi and Urdu books, which was destroyed tremendously during 1857 mutiny. The Britishers destroyed. Actually, the Britishers sort of wanted to destroy a lot of institutions, rather than they even damage the institutions. So this was one of the Anglo-Arabic school was one example wherein they burned the library, and which was completely unethical, and it caused a lot of it had damaged a lot of Farsi and Urdu literature books actually. And then modern school came up, commercial school, Happy School, Anglo Sanskrit, Arya Samaj, Ramjas institutions. They were the schools that came up in Purani Delhi, और एक बहुत ही prominent girls का school हुआ करता है अभी भी, इंद्रप्रस्था school, which was started by Annie Besant. And just in the corner of Jama Masjid, one corner of Jama Masjid, and just beside that is this temple I was referring to, Prabhupatji's, in the Chippiwada area. So one door used to open in the school's one door, the back door used to open in Chippiwada, and the main door was at Jama Masjid. So the girls coming from Jama Masjid area could use that door, and the girls coming from within the city from behind used to enter from the other door. And girls education institution and then Sarojini Naidu, Rabindranath Tagore, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, they all visited this institution because of Annie Besant. And this was one, and then Master Hardayal, who is Stephanian, बड़े important, Amir Chand, इनके नाम से Amir Chand मार गए नई सड़क. They were all, these other party revolutionaries. And actually, after 1857 and 1947, the demography of Purani Delhi, contemporary Purani Delhi, changed a lot. Britishers destroyed it. Nadir Shah also destroyed it before, yes. And then 1947, destroyed a lot of, cultural institutions and damaged, and we have 25 more photos pending. Yeah, we'll quickly talk about them. I think, I'm dying to see them. Now, this is a Jain temple in Dharampura area. Beautiful, one temple is more beautiful than the other. Can you see them all? And this is the Zardozi Chandoa that you see. This is what you had referred to earlier when you were talking about weddings. Called the Chandoa and gives, the auspicious. Yeah. So in weddings and in auspicious occasions, ये चंदोआ देखिए कितना खूबसूरत है. ये जरदोजी पुराना एंटीक है ये, और इतना खूबसूरत जरदोजी का और जली का काम हुआ है इसमें.
बहुत और और शनील एकदम चारों प्योर तरफ से it वेलवेट है। gives the auspicious impression. Yeah, it's actually not velvet, इसको क्या बोलते हैं मेरे को, chenille. शनील, हाँ हाँ शनील। और Chanel, एक बड़ा Chanel, सुंदर इस this पे French fabric. Yeah, this जी French fabric Chanel, शनील या Chanel that is, and then उसके ऊपर जरदोजी का काम हुआ हुआ है ये, बहुत खूबसूरत और तो साथ में हाँ बहुत ही सलमा भी खूबसूरत है, लगा हाँ, है, बहुत ही खूबसूरत, सितारे भी लगे हैं और किरण सितारे भी भी है, लगे हुए हैं, बहुत या सुंदर। किरण भी है, या बहुत ही खूबसूरत, एक से एक खूबसूरत जैन टेम्पल है, और विद वेरी इंट्रिकेट वर्क। ये रामलीला की तैयारी हो रही है साहब, ये धर्मशाला में एक एस्प्लेनेड रोड पे ही, वाह और ये सब लोग जो हैं कैरेक्टर्स तैयार हो रहे हैं वहाँ पे। हाँ हाँ तो यही देखिएगा, मैं जो आपको रेफर कर रहा था कि ये सब धर्मशाला इंस्टीट्यूशंस, दे वर ऑल यूज्ड फॉर सच पर्पस, दे वर यूज्ड टू होस्ट द पिलग्रिम्स हु वर कमिंग और गोइंग ऑन द वे, स्टॉपिंग इन दिल्ली। ट्रेडर्स जो हैं वो हाँ यहाँ हाँ ठहरते हाँ थे, अभी भी ठहरते हैं बहुत लोग, जो ट्रेडर्स आते हैं, और ये रामलीला का जो है वो एक तैयारी यहीं से होती है। ये सवारी निकल रही है, आप देखिए, वाह और ये राम दरबार की ये सवारी, इसको दरीबा से सवारी निकल रही है। बोलते हैं, हालांकि रामलीला प्रोसेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये घोड़ा कौन है? इंटरेस्टिंगली पीछे आप देखिए एक मस्जिद नजर आ रही है, ये घोड़ा तो जो है इट्स अ मॉडल एक्चुअली, एंड अच्छा ये रथ है, ये रथ है विच इज बीइंग पुल्ड बाय द मेन डाउन, यू विल सी। ओके हाँ, या और अच्छा ये लोग इसको खींच रहे हैं, और रथ को, और ये किनारी बाजार दरीबे की एक वो है, और पीछे देखिए आप एक मस्जिद मॉस्क आपको हाँ नजर हाँ आ रही हाँ है, जी सूरज वाली मस्जिद, विच इज प्रोबेबली आई थिंक वन अमंग्स, मुझे लगता है कि आई थिंक हिस्टोरियंस वुड क्रॉस चेक, बट दिस इज द ओनली mosque that's got a sun emblem on it. हम्म yeah one can see that Generally, just above the head of the horse you can see the sun just above emblem. the head of the horse. Hmm. Yeah. So this is a mosque in Dariba Kala, Hmm. and just below this is a shop of a very old perfumer. वहाँ हाँ आपको इत्र फुलेल और ये सब मिल जाएगी। जी हम इसी तरह से पहचाने थे इसको Yeah. I come to the next picture. यस ये हाँ बहुत ही आप ये मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये दो पिक्चर्स रिपीट करूंगा बार बार। ये देखिए आप, ये सैयद बादशाह का आला है, और बहुत ही दिस इज वन कल्चर ऑफ पुरानी दिल्ली, जिसके अंदर ये एक ताक है और एक आला बना हुआ है, जिसको हम आला कहते हैं या ताक कहते हैं। ये आपको सिर्फ यू विल फाइंड दिस ओनली इन दी हिंदू एरियाज। और और थर्सडे को जो है यहाँ पे सेहरा चढ़ाया जाता है। शाम को लोग जो है वो सैयद बादशाह को सेहरा चढ़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और धूपबत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं यहाँ पे। और कुछ लोग जो है वो बताशे का, मीठे का जो है वो प्रसाद लगाते हैं यहाँ पे। And he is supposed to be the savior or the protector of the area. हाँ, और ये आप देख रहे हैं, देखिए सेहरा लगा हुआ है ये, और खुशबू वाले फूलों का ही सेहरा लगता है। आप देखिए अच्छा इसमें रजनीगंधा का लेफ्ट में आप देख रहे हैं सेहरा बना हुआ, इधर गुलाब का, गुलाब हाँ इधर देसी गुलाब का ये सब। और जो राइट में आई विल टेल यू, जो ये ताक है या ये जो सैयद बादशाह का आला है, ये शीश महल घर के अंदर है, जहाँ से स्टीफेंस कॉलेज शुरू हुआ था। ये वहाँ एक ताक है ये, तो ये बहुत पुराना ताक है ये, और आला है सैयद बादशाह का। और सैयद बादशाह इज एन इमेजिनरी सूफी सेंट, सूफी पीर। अच्छा and the picture of Sayyid Basha is that he is very tall with long white hair and long white beard, and he is wearing a malmal ka long kurta with a white tehmat and a stick in his hand. अच्छा and और बहुत लोगों को जो है जो आस्था रखते हैं इसके अंदर, those people who have got the who revere it very closely, they have seen him in the night time roaming around and protecting the place. तो कुछ लोगों को दर्शन भी हुए हैं। तो ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट पुरानी दिल्ली, जो कि मैंने कहीं और देखा नहीं है। और ये वन ऑफ द वेरी वंडरफुल आइडिया ऑफ पुरानी दिल्ली। लेट्स मूव टू द अदर पिक्चर। ये और कई जगह के मैंने
ये आले हैं, ये देखिए आप, लोग जो Beautiful. है वो धूप बत्ती लगाते हैं और सेहरा चढ़ाते हैं, और ये कुछ लोगों ने, Beautiful. इट यूज्ड टू बी जस्ट सिंपल ताक एंड सिंपल आला, लेकिन कुछ लोगों ने अभी उसको जो है थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया है, लेकिन these are- ये पुरानी दिल्ली के शौक हैं साहब, ये खाने पीने के। देखिए गोंदनी एक फल गर्मियों में आता है, पीछे आप देखेंगे ये शहतूत और जामुन बिक रहे हैं, और पुरानी दिल्ली में ये सब इस सब खाने पीने का जो है एक बड़ा अलग ही मजा है, और जो कि इनके डेकोरेशन भी तो आप, कितना अच्छा है ना, पत्तियां लगाते हैं साथ में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आवाजें लगाते हैं कुछ लोग तो जो है वो इतनी बड़ी म्यूजिकल। इंटरेस्टिंग आवाजें, बड़ी म्यूजिकल आवाजें लगा लगा के बेचते हैं कुछ फेरी वाले। तो पुरानी दिल्ली के फेरी वाले, पुरानी दिल्ली की फल और मिठाइयाँ, ये सब। ये भी एक इंटरेस्टिंग चित्रगुप्त जी का मंदिर है, जो कि सिर्फ 2 मंदिर हैं दिल्ली में, एक रोशनपुरा में है। we are supposed to be the descendants of Chitragupta ji. Right. Chitragupta ji is he is the accountant general of Yam Devta. So he keeps the accounts of everybody, कौन किसको जो है वो स्वर्ग में जाना है, who is supposed to be get the hell, and who is supposed to get the heaven. So he keeps the account of it, and we are probably the supposedly the descendants of Mathurs and the whole caste, Srivastavs, Bhatnagars, they are all supposed to be the descendants of this god. And the most interesting thing which you will see is the Urdu, that is that's inscribed. You can see the pedestal of the shrine. Of the idol, you will see that that there is Urdu written on it, and it नीचे भी आप देखेंगे उर्दू में जो है किसी डोनर का नाम लिखा हुआ है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जिसको मैं बोलता हूँ कि जो थिंग्स दैट कंजॉइंड अस टुगेदर, उर्दू एज ए लैंग्वेज वाज वन। आप कितना ही डिनाई कर लीजिएगा, बट उर्दू हैड बीन द ऑफिशियल लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज, एंड एवरीबody all the communities used Urdu as a language, as the main language. Then of course when modern education came, these institutions came, people started अंग्रेजी पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया, हिंदी पढ़ना, ये सब। of course Hindi was spoken and read as well, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू ही थी। जी और फारसी और उर्दू जो है वो was considered to people were considered to be more than literates if they knew फारसी। उर्दू तो सभी को आती थी पढ़नी। तो ये एक और एक बड़ा the aspects that conjoined us, the language was one of it, apart from the food एक जनाब है अखलाक खान, उन्होंने बोला माथुर्स were also known for their expertise in फारसी। I'll tell you कि उर्दू तो सभी को थी because it was a common language, but फारसी का जो जिसको इल्म था, जिसको नॉलेज थी, he was considered to be little above this thing। और ये दिल्ली के शौक हैं साहब, ये देखिए, ये दिल्ली की हॉबीज हैं। मुर्गा लड़ाना, मेंढे लड़ाना, दुम्मे लड़ाना और बकरे लड़ाना और पहलवानी, ये सब चौक पे हुआ करती थी। these were all traditional games and hobbies that people indulged in। और ये आप देख रहे हैं मुर्गा लड़ाने के लिए मुर्गे बिक रहे हैं, और इनके स्पेशल मुर्गे होते हैं जो कि लड़ाइयों के लिए जो लड़ाए जाते थे। और कबूतरबाजी और एक्सोटिक बर्ड्स रखना जो है वो भी एक शौक में आता था। लोग जो हैं वो बर्ड्स रखते थे, एक्सोटिक पैराकीट्स और बजरीगर्स और काकातुआस और मैनास एंड फाख्तास एंड कबूतर, एक से एक बढ़िया कबूतर होते थे। अब ये देखिए, ये कबूतरबाजी का शौक चल रहा है पुरानी दिल्ली में। और ये चौक एरिया कहलाता है जामा मस्जिद और लाल किले के बीच में, जहाँ हर संडे को चौक लगता था, और दूर दूर से लोग जो है वो कहीं से आगरा से, मेरठ से और बरेली से और इधर उधर से जो है वो कबूतरबाज आते थे खरीद फरोश करने। कोई कबूतर बेचने आता था तो कोई दिल्ली के कबूतर खरीदने आता था। और ये कबूतरबाजी और यहाँ पर आपको एक्सोटिक बर्ड्स वगैरह ये सब मिल जाते थे, और ये चौक हर संडे को लगता था ये। और ये देखिए आप कबूतरबाजी हो रही है पुरानी दिल्ली। ये पुरानी दिल्ली के शौक थे साहब, जो कि जिसमें
हिंदू भी इंडल्ज करते थे और मुसलमान भी इंडल्ज करते थे। तो जी ये ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ मुसलमानों के शौक थे। जी जी इसमें इक्वली हिंदूज यूज्ड टू इक्वली पार्टिसिपेट एंड यू नो ये सब शौक थे उनके। ये देखिए कबूतरबाजी हो रही वाह ओ वाह है। तो ये है पुरानी दिल्ली हमारी, जो कि अभी तक शौक बरकरार हैं। ये पुराने शौक हैं ये, लेकिन बरकरार हैं। और ईद की फेस्टिविटीज देखिए साहब, जामा मस्जिद शबे रात में जो है वो ब्यूटिफाइड, यू नो इट्स सो ब्यूटीफुली लिट। और वेरी जस्ट एट दिस कॉर्नर यू नो इज दिस इंद्रप्रस्थ स्कूल एंड द टेम्पल ऑफ इस्कॉन दैट आई वाज रेफरिंग टू, जी जी जस्ट बिहाइंड जामा मस्जिद। हाँ और चिपीवाड़ा कितनी में हाँ खूबसूरत कितनी खूबसूरत लग रही है जामा मस्जिद, देखिए आप इस ब्यूटीफुल जामा मस्जिद तो बहुत खूबसूरत लग रही है इस वक्त वाह लवली फोटोग्राफ समय। और ईद की फेस्टिविटीज हैं साहब, ये एक हमारे मित्र हैं सादिया, जी जी और बड़ा उनकी नानी बैठी हैं कॉर्नर में, आप देखिए सादिया खड़ी हुई राइट हैं। राइट ये सादिया सैयद हैं सादिया सैयद हैं और उनकी नानी जान जो है वो, नानी अम्मा जो है वो नीचे उनके दिख रही हैं राइट राइट आपको। और ये सब, हाँ, और ये सब हम लोग जो है वो सालाना ईद के दिन जो है वो मिलते हैं सब एक दूसरे से, और मिठाइयाँ मिठाइयाँ एक्सचेंज होती हैं। और वाह कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर जो है वो ईद का ईद मिलन होता है। हमारे दोस्त अबू भी दिख रहे हैं इसमें इसमें अबू भी दिख रहे हैं आपको, ये खड़े हुए हैं दाढ़ी वाले पीछे। जी और अबू सिस्टर आर देयर, माय सिस्टर एंड माय वाइफ इज देयर अच्छा अच्छा ऑन द लेफ्ट। राइट द आई कैन लेफ्ट सी फर्स्ट इज वाइफ एंड माय सेकंड इज माय सिस्टर। ब्यूटीफुल तो हम स्प्रेड लोग आल्सो सब, ब्यूटीफुल स्प्रेड। और अलग अलग तरीके खाने पीने नाश्ते जो हैं वो जो होते हैं टिपिकल इस बार वो। तो दोनों ईद ऐसे ही निकल गई हाँ, इस बार तो बहुत ही इट वाज वेरी डिजेक्टिंग एक्चुअली। और ये देखिए ईद हाँ की फेनी फेस्टिविटीज, ये फेनिया और सेवइयाँ बिक रही हैं। और ये फ्राइडे कॉन्ग्लोमरेशन है। ये तस्वीर मेरी खींची हुई फतेहपुरी मस्जिद की, फतेहपुरी मस्जिद जिसमें आपको बिल्कुल मिनारेट के मिडिल में आप बिल्कुल पीछे देखेंगे तो जामा मस्जिद की डूम भी नजर आ रही है। यस और ये जो ग्रीन पैच है उसमें बिल्कुल एट द डेड एंड ऑफ दिस ग्रीन पैच इज रेड फोर्ट, चांदनी चौक। क्योंकि अब मुझे पता नहीं कितने पेड़ कट गए हैं या क्या है कुछ इसका। आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू द चांदनी चौक ब्यूटिफिकेशन, सो कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन। राइट लेकिन ये कुछ सालों की, 2-3 साल पहले की खींची हुई तस्वीर है। इतना एंड एहसास नहीं होता इतना मैसिव उसका कोर्टयार्ड है लीजिए साहब कचौड़ियाँ खाइए। जो है वो जामा मस्जिद पे बहुत ही स्पेशल कचौड़ी वाले हैं ये मटिया महल एरिया में। और रमजान के कारीगर बाद जो हैं हाँ इनके रमजान के बाद ईद में जो है वो ये हॉट केक्स की तरह बिकती हैं। यू कैन से दैट यू नो दे लिटरली हॉट सेल केक्स लाइक हॉट केक एंड ह्यूज, देखने लायक है कढ़ाई। और स्पेशली कारीगर आते हैं बाहर से अच्छा और बनाने। हाँ, या स्पेशली कारीगर आते हैं बनाने। यू कैन इमेजिन यू नो द काइंड ऑफ proportion that you have to mix it, how much salt I goes in mean I'm it, और ये looking at the सब। numbers and that you know that Yeah, person who's huge, sitting there huge. it's Yeah. incredible So look at the, ये सब चीजें जो हैं वो दिल्ली की। और दिल्ली के खाने जो हैं वो दे आर ऑल सीजनल। अब ये इमरती निकल रही है साहब, वाह ये इमरती one thing that you will only get it in traditional shops, you will only get it during the Shraddh days. right You will not get these traditional halwais making imarti during any time of the year. Although in bigger shops you get them now, आप हल्दीराम वगैरह, एवरग्रीन वगैरह यहाँ कहीं जाइए तो यहाँ पे हर जगह मिल जाती हैं। पूरे साल मिल जाएगी आपको इमरती। लेकिन आप ट्रेडिशनल दुकानों में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको इमरती जो है वो सिर्फ श्राद्ध के दिनों में मिलेगी और बाकी नहीं मिलेंगी आपको। और ऐसे ही जो है वो घेवर, फैनी और आपका जो है वो अनरसे की गोली, वाह एक इस बड़ी वक्त इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे पता नहीं सब। हाँ, इस वक्त सावन की जो है वो ये सब मिठाइयाँ हैं। और घेवर जो है, चाइना राम का घेवर जो है वो चांदनी चौक फतेहपुरी पे प्रैक्टिकली लाइन लगा के बिकता है। अरे माय फेवरेट एंड ये जो है ये ओह ये देखिए
या ये नहारी बिक रही है मटिया महल में, जो कि आप शाम को खाइए। वैसे तो ये सुबह का नाश्ता है, लेकिन शाम को रात को जो है ये इनका दौर चलता है, और आप बैठ के आराम से जितनी मर्जी तरी लीजिए इसमें साहब। एक बार आप एक प्लेट ले लीजिए, और फिर रोटी लेती रहिएगा आप, खमीरी रोटी इसके साथ, और तरी डालते रहेंगे जनाब, बिना कुछ आपसे सवाल किए, चाहे आप एक बार ले चाहे 10 बार लें। वाह। और ये मजा है खाने का। पुरानी दिल्ली का देखिए आप कितनी जबरदस्त, और इसमें से नहारी जो है वो सर्व हो रही है। और दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेटली दिस शॉप हैज गॉट शट डाउन ड्यूरिंग द आफ्टर द हम सुने यहाँ पे ग्रोसरी शॉप आ गई है उसके। ग्रोसरी शॉप बन गई है ये। ग्रैंडसन चला रहे हैं सुना है। These are our dear friends, संजय हेगड़े साहब और राना आपा और हाना मोहसिन खान, ये ईद के बाजार में मजे ले रहे हैं सर। इस समय जो है वो काले जाम खाए जा रहे हैं। Yes, I can see that. अच्छा, एक को किस्सा बताइए जो आपके ग्रैंडफादर एक चीज खरीदते थे सिर्फ ईद बाजार से। माय ग्रैंडफादर वाज वेरी वो एक नाड़े मिलते थे पजामे में डालने के ईद के बाजार में, जो अभी भी मिलते हैं एकदम कॉर्नर पे, जामा मस्जिद जहाँ शुरू होती है एकदम मटिया महल में, वहां भी बैठते हैं, और एक कुछ अंदर भी मिल जाएंगे। वो बड़े अच्छे कॉटन के जो है वो नाड़े, डिजाइनर नाड़े मिलते थे। और इवन इफ यू वुड सी देम डैंगलिंग people won't mind because they were so beautiful. एंड हाँ, और वो सलवार में, जेंट सलवार में और पजामों में जो है वो नाड़े डलते थे, तो और वो बड़े कंफर्टेबल होते थे, एकदम ग्रिप उनकी जो अच्छी होती थी। अच्छा। बिकॉज ऑफ द मटेरियल दे वर मेड। वो ईद के बाजार में ही अमूमन मिलते थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे, आप जब रामलीला की सवारी निकलती है तो उसमें मोहन बड़ियां मिलती थी किसी जमाने में। मैं आपको बताऊं तो वो मोहन बढ़िया वो चावल की बढ़िया बनती थी, और वो मिलती थी, और चावल के पापड़ वगैरह मिलते थे। तो ये सब जो है ये फेस्टिवल्स में ही मिलते थे। ये मोहन बढ़िया, चावल के पापड़, ये सब जो है वो रामलीला के बाजार में मिलते थे। और ये सब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे नाड़ा हुआ या अच्छे मलमल के कुर्ते हुए, ये सब ईद के बाजार में मिलते थे, और लोग सब शॉपिंग करने जाते थे। हम लोग लेफ्ट में क्या हो रहा है? लेफ्ट में एक नशिस्त हो रही है साहब। ये भी एक बहुत जबरदस्त कल्चर है दिल्ली का, कि शायरी का। आप शेरो शायर जो है वो आंगन में बैठ के, और लोगों के घर में जो है, जैसे हम लोग का बैठक का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही ये शेरो शायरी का कॉन्सेप्ट नशिस्त चल रही है। कि ये क्या कोई दरियागंज में घर है? ये आर्ट डेको स्टाइल? नहीं, ये पंजाबी फाटक में एक घर है साहब का। अच्छा। उनके यहाँ जो है, उनके आंगन में, उनके दलान में जो है ये हो रहा है। और देखिए कितना खूबसूरत घर है उनका भी। और ये अभी भी होता है, और ये नशिस्तें अभी भी होती हैं, और दीज गेट टुगेदर्स। और ये राइट का जो पिक्चर है, दिस इज द फेमस एंग्लो अरेबिक स्कूल जी। और हाँ, ये हॉस्टल्स हैं एंग्लो अरेबिक स्कूल के, जो कि which is now being used by the madrasa and the school both. और किसी जमाने में जाकिर हुसैन कॉलेज भी यहाँ था। I took my classes in Zakir Hussain College. I am an alumni of Zakir Hussain College. तो ये हाँ, तो 1991 तक हमने भी क्लासेस अटेंड करी यहाँ पे। उसके बाद फिर नई बिल्डिंग में जो है वो चला गया, कॉलेज शिफ्ट हो गया। और ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं, ये गडोडिया मार्केट है, अनदर ट्रेडिशनल मॉल दैट यू कैन से। आजकल के मॉल्स आप देख रहे हैं जहाँ पे अटैच्ड होटल्स हैं और ये सब हैं। ये ऊपर के एरिया के अंदर जो है वो लॉजेस थे। These were the lodges that could accommodate people, traders coming from outside. And small time financiers were there, small time bankers were there in these, and below this was the market. तो ये मारवाड़ीज का, बनियास का, खाड़ी बावली एरिया में डोमिनेंस ट्रेड में, ग्रोसरी ट्रेड में और ग्रेन ट्रेड में। तो ये
this is a classic example of a market which could accommodate traders coming from outside and giving them the amenities of banking and lodging and keeping their money safe and money transferring and all that. And below were shops selling. ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये यहाँ पर है, क्योंकि सब जगह ये जैसे लंदन वंदन में कहीं होता है इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, जैसे वो हमारे हॉल है वहाँ पे। They would have maintained it. हाँ, ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर है। इसमें बड़ा ही इंपीरियल, ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपीरियल स्ट्रक्चर है, इसमें इन्फ्लुएंस है डोम्स का। ऊपर डोम्स बने हुए हैं कॉर्नर्स में, चारों कॉर्नर्स में। और ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इट इज वेस्टर्न आर्किटेक्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न आर्किटेक्चर। आप देखिए, लुक एट द ब्यूटी ऑफ पुरानी दिल्ली, एंड एक से एक ऑल माय पिक्चर्स वुड टेल यू I mean, you can take hours, speaking on one picture, actually. Right. No, I know what you're saying. And ये देखिए साहब, शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी, this is now the watering hole for a lot of young thinkers and young poets and young academicians and researchers who come and research here and refer to books. चंगेजी साहब जो हैं, वो he belongs to the great चंगेज खान lineage, and उनके नीचे आप देख रहे हैं साहब जो बैठे हैं, नईम भाई. He is the one who conceptualized this library and named it after the great scholar Shah Waliullah. जी. और लाइब्रेरी में देखिए तमाम लोग, these are people who would be using the library, and I mean, it's a must visit. I mean, I had the good fortune. It's actually, yeah, you've been here? Yes, I went there with Abu. Okay. This actually is a wonderful place. This actually is a wonderful place. And in the absence of a lot of like-minded people and rihaish khatam ho rahi hai, so I find a lot of solace going here and sitting here and talking to people, and you have fantastic open kind of interaction and conversations about everything, right from religion to politics to there are media people coming here and sitting and talking, and there are local people who would come and put in their they'll talk about their local problems, they'll talk about the problem. वो जो एक argumentative Indian है ना, वो यहाँ पर आके अपना पूरा you can open yourself up and speak at your liberty about anything you feel like. जैसे वो coffee houses हुआ करते थे. हाँ, कॉफी हाउस आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नईम भाई has made one thing very essential, that any visitor who comes here gets the tea. हाँ. और कोई अगर अपना पास का चश्मा भूल गया है तो यहाँ चश्मे भी मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए. चलिए, अभी तक नौबत नहीं है, लेकिन I'll keep this in mind. So this is one treasure. This is one treasure of पुरानी दिल्ली. ये नेक्स्ट इमेज देखते हैं. ये भिश्ती की इमेज जैसी हमने आपको बताई है. थैंक यू दैट यू हैड पुट इन एन इमेज. एंड ये सवारी जो निकल रही है और ये भिश्ती जो है वो we are talking about a beautiful sun setting behind Jama Masjid. And ये देखिए साहब, ये 15 अगस्त every year we get together. There's this institution called DAIWA, Delhi Youth Welfare Association, which is also an organization run by conceptualized by and we get together at a house which is probably the topmost house in the Padi area, and you will see in the background Jama Masjid, and we hoist national flags here and sing the national anthem, all of us. And that is a wonderful, very proud feeling. और उसके बाद फिर पतंगबाजी होती है. पतंगबाजी कीजिएगा, उसके बाद फिर जो है वो कोई साहब जो है वो अपना कबाब पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेंगे, या कोई खाना पीना होगा, मिठाइयाँ चलेंगी और ये सब होगा. तो ये सब रौनक पुरानी दिल्ली की है जी. This is also one very important aspect of this is nice. Yes.
This is on the right hand side is a किनारी shop. आप जरदोजी का किनारी का काम जो है ये आप देखिएगा, ये पुराना एक अनार की गली में एक दुकान है, हमारे मित्र हैं, उन्हीं की दुकान है ये एक्चुअली. So he allowed us to take a picture. His uncle is sitting and ये पुराना जरदोजी का काम यहीं पर ही, छोटी सी फैक्ट्रीज भी हैं उनकी थोड़ी बहुत, और रिहाइश भी किसी जमाने में थी, अब तो नहीं रहते यहाँ, लेकिन they are using it as a shop. अच्छा. And yeah, good senses prevailed that they have not converted it into a tasteless warehouse or a pigeonhole. Maintain the old architecture and so ये आप देखिएगा. और लेफ्ट में एक इंटरेस्टिंग ट्रेडर है ये, जो कि एक्सट्रैक्टर है, ये एक्सट्रैक्ट चांदी और सोना करते हैं आउट ऑफ योर जरदोजी. जो आपकी जरदोजी का काम जो है करते थे, उनका जो है वो उसमें से सोना एक्सट्रैक्ट करना, चांदी एक्सट्रैक्ट करने का काम है. आपको अगर if you want your extracted gold, he can give you the extracted gold or he'll give you the value for it. तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ट्रेड है. पास कसौटी भी है ना, वो कसौटी भी है. आप मुझे पता नहीं आपको यहाँ दिख रही है कि नहीं, लोटे के पास रखी हुई जी, एक पत्थर जैसा है. तो ये कपड़ा बर्न करके और उसमें मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. और ये किनारी बाजार में ही एक दुकान है ये. और how can we forget the old wonderful Tonga of पुरानी दिल्ली. ये भी एक लाइफ लाइन हुआ करती थी, टेकिंग पीपल फ्रॉम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन. तो अब भी चलते हैं और पहले भी चलते थे. और टांगा स्टैंड हुआ करते थे हौस काजी पे, बड़शाबुला पे, जामा मस्जिद पे, और जगह जगह वहां से जो है वो एरेंड टू एरेंड भी चलते थे और लोग आप ले भी जाते थे. और लोग दूर दूर भी ले जाते थे. दे यूज्ड टू हायर, कुछ लोगों के पास तो एफ्लुएंट लोगों के पास अपनी बग्गियां हुआ करती थी, लेकिन जिनके पास नहीं होती थी वो तांगे हायर कर लेते थे. और खासतौर पे बारिशों के दिनों में ओखले ले जाते थे पिकनिक मनाने. तो तांगा जो है वो यहाँ से पुरानी दिल्ली से ओखला जा रहा है, महरौली जा रहा है. महरौली का बड़ा जो है वो मानता थी जोगमाया मंदिर की. तो जोगमाया मंदिर जाते थे और जैन टेम्पल था वहाँ. तो जैन जो मंदिर है आप वो वहां जाते थे लोग, जैन्स जाते थे. तो ये तांगे वाले जो हैं वो दीज वर द लाइफ लाइन, ये लोग लेकर जाते थे, तांगों में बैठ बैठ के जाते थे. कोई कालका जी जा रहा है, कोई जोगमाया मंदिर जा रहे हैं, जोगमाया मंदिर का दादाबाड़ी जा रहे हैं. तो जोगमाया मंदिर का एक बहुत ही उस एरिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आई टेल यू, वहां जो बावलियां और कुएं थे they were full of minerals. तो पहले तो ये मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन इतनी प्रेवलेंट नहीं थी. लेकिन लोग क्या करते थे, हवा पानी बदलने के लिए कुछ लोग जो हैं वो हकीम और डॉक्टर जो हैं वो सलाह दिया करते थे. तो काफी लोग जो हैं वो जोगमाया मंदिर के आसपास जाते थे और वहाँ एक कुआं था, उसका पानी यूज करते थे. एंड दे यूज्ड टू, उससे शिफा होता था और लोग cure their diseases. So yeah. और इन्हीं की सादिया दहलवी की किताब से पता चला मुझे कि आपकी आवाज कट रही है शगुफ्ता. एक्चुअली ये मैंने सादिया दहलवी की किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से मॉनसून में पिकनिक्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे महरौली में. हाँ, महरौली में पिकनिक्स होती थी, ओखला में बहुत पिकनिक्स होती थी. माय फादर had about 17-18 friends, friends whom he used to roam around every Sunday, और किसी ना किसी के घर में पार्टी हो. लेकिन बारिशों के मैंगो पार्टी जो है वो मैंगो एंड रम पार्टी यूज्ड टू हैपन इन ओखला ओनली. तो these boys would take a bottle of their rum and buy मैंगोज ऑन दी बोट में बैठ गए और किसी ने अपना जो है वो शर्ट उतारी और उसी में आम बांध ली और नीचे टांग दिया उसको जमुना जी में. द रिवर वाज यूज्ड टू बी वेरी क्लीन एक्चुअली. एंड आम खाए जा रहे हैं किलो के हिसाब से, और जो है वो शर्तें लग रही हैं कि भाई तुम कितनी गुठलियां दिखाते हो खा और
ये सब पुरानी बातें और हाँ, तो खूब मजे, ये जो पिकनिक्स के मजे हुआ करते थे ओखला में और खासतौर पे महरौली में। अब तो यादें हैं। और तो एक और आपको हम बताते हैं, जहाँ अब तो बिल्कुल यादें हैं, till the age of my grandfather, and I mean I'm talking about not very far away, about 40 years back only, there were a lot of people who would go and take their bath in the, एक घाट हुआ करते थे, वहां जाके जो है वो नहाते थे जमुना जी में, और फिर उसके बाद जो है वो कोई हनुमान जी के, मरकट वाले हनुमान जी के दर्शन करता हुआ, या कोई गौरी शंकर के मंदिर के दर्शन करता हुआ, या कोई कहीं के दर्शन करता हुआ फिर वो घर लौटते थे। तो 4 बजे 4:30 बजे बहुत लोग पुरानी दिल्ली से जो है वो नहाने जमुना जी पे जाते थे। अच्छा, एक सवाल आया सीमा जी की तरफ से, कितनी देर लगती होगी जोगमाया मंदिर पहुंचने में चांदनी चौक से? जोगमाया मंदिर पहुंचने में बहुत समय लगता था, क्योंकि तांगे से ही लोग जाते थे, और लेकिन हाँ ये है कि अगर दोपहर तक पहुंचना होता था तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे सब अपनी तैयारियां करके, और फिर वहां से जो है वो आइदर दे यूज्ड टू स्टे देयर, और क्योंकि लौटना बहुत मुश्किल होता था। मैं आपको बताता हूँ कि माय ग्रैंडमदर एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू टेल स्टोरीज दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इवन I mean, unless if you would go to Kalkaji and you did not start before, I mean after 2 o'clock or 3 o'clock in the afternoon, it would become very difficult and dangerous, because काफी लूटपाट भी हो जाती थी। तो कालका जी तक जाने में जो है वो लोग they used to prefer कि भाई सुबह सुबह जल्दी निकल गए और दोपहर को वहां से 2-3 बजे से पहले निकल गए रोशनी में। तो these were also आवाज थोड़ी बस डिपो बन गया, नेहरू प्लेस का और आपका लोटस टेम्पल बना, कालका जी के आसपास सारा एरिया जो था, ये सिर्फ एक चांदी वाला एस्टेट हुआ करता था वहां पे कालका जी में। ओके ओके, सो आई थिंक वाइल्ड बेर जो है, क्या बेर? या वाइल्ड बेर हुआ करते थे वहाँ, लाल रंग के छोटे छोटे बेर जो हैं उनकी झाड़ियां हुआ करती थी। तो खूब बेर, तो हम लोग कालका जी जाते थे तो वो बेर का भी जो है वो मजे लेते थे वहां पे। और ये सब तो ये पुरानी दिल्ली शगुफ्ता जो है, आप जितनी देर बात करते रहे उतना कम है। That's true. अभी बहुत वक्त हो गया, हमने आपका चेहरा नहीं देखा है, जरा स्क्रीन रिवर्स कीजिएगा। you haven't seen me? नहीं, मतलब अब आपको हम लोग बहुत देर से वो देख रहे हैं ना, आपकी तस्वीरें। Okay. Okay, so I quit it. I stopped the share here, and yeah, here am I. Yeah. Okay. And any questions that are coming up, because I can't see it on my screen here. You would like to कुछ बताना चाह रहे हैं तो it will probably might help in even increase my knowledge about my own city if I'm missing anything. नहीं, यहाँ तो मतलब I think we've had a very good discussion for the first session के लिए। और ये यहाँ पर ही रुकेगा नहीं, because we should continue this, we should extend this further and try to do a second round. Sure. And maybe this time we will talk about because there's so much, even in our conversations, I recall that the first time we spoke on the phone, मुझे याद है कि मतलब कुछ चीजें जो आपने बताई थी, कुछ एस्पेक्ट्स, वो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। Lovely. So lovely speaking to you. And the only thing is, मनमोहन शर्मा जी ने बताया, I think you may have forgotten to mention that, you may have missed this. उन्होंने बोला कि दूसरा चित्रगुप्त जी का मंदिर जो है वो पहाड़गंज में है। I told you that there are only 2 temples. One is in Paharganj and the other one is in Roshanpura. और एक में let me, if when we are referring to Chitragupta Ji Mandir, I should refer, Babe Lalu ka mandir as well. So Babe Lalu is probably the Kuldev of the Khatris. तो ये छिपीवाड़े में एक बाबे लालू का मंदिर है जहाँ पे खत्रीज, I mean I think all the Khatris of
Delhi come and conglomerate there also annually, कुछ होता है of you know kind of baptized occasion होता है, फेस्टिवल खत्रीज आके वहाँ पे जो है वो साल में एक बार they come here and get this done in the temple here called Babe Lalu का मंदिर in Chippiwada. In Chippiwada. तो वो भी एक I should have mentioned that, and I'm mentioning it now. But unfortunately, the note that I want to get off with, with this conversation, or to end this conversation, is that we are caring least about this city. We perpetual governments have failed to keep up with the heritage. People, of course, who belong to Purani Delhi have also sort of neglected this city, and people who are now inhabiting the city are also neglecting the heritage. जी. और ये एक ले दे के आप किसी से भी बात करेंगे तो एक इम्प्रेशन ऐसा है कि पुरानी दिल्ली इज ओनली मेंट फॉर ट्रेडर्स टू कम एंड ट्रेड हियर. तो रिहाइश का और यहाँ के कल्चर का और यहाँ के रहने वालों का जो है वो they are being completely neglected, and the culture has been completely neglected. No, I see that stakeholdership जो आप बात कर रहे हैं. हाँ, तो वो एक that is a dejection actually, and or which is very sad actually. It's saddening, and I get reminded of a couplet by John Elia कि भाई कौन इस घर की हिफाजत करे, रोज एक चीज टूट जाती है. Every day you will find something or the other going, because with the going of a haveli, it's not a structure that is going away. It takes away a lot of other things. It takes away your life, it takes away your lifestyle, it takes away your culinary art, it takes away your tehzeeb, it takes away your language, it takes away every damn thing. It's not a structure that goes. Your everything, all aspects of your life and culture, goes off, with it. नहीं, और जैसे आपने मेंशन किया कुछ चीजें, जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी बहूज गेट आस्क्ड इन द माथुर फैमिलीज नाउअडेज कि आप गाना गा के दिखाएं या गाना गाएं कि, और वो it doesn't happen because वो ट्रेडिशनल शादियां ही नहीं होती हैं. अब वो ट्रेडिशनल शादियां ही नहीं होती हैं. अब होटलों में और बैंक्वेट्स में शादियां हो जाती हैं. सब अपना शादी के बाद कोई अपने घर चले जाते हैं सब. तो वो ट्रेडिशनल गेट टुगेदर्स और शादियां होती नहीं. तो अब ये सब एस्पेक्ट्स दे हैव ऑल बीन लॉस्ट. पता नहीं, शायद मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत मेजर पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है ये कोविड के बाद में. मुझे लगता है लोग ज्यादातर आपस में अब मिलके रहेंगे और शायद सोचने पे मजबूर. Let us see. COVID has given us an opportunity to think on those terms, certainly. But I'm sure humanity is such that we have only been talking about reviving the economy. We haven't been talking about saving our life through environment, or we are not nobody's talking anything serious on any platform that nature has given us an opportunity. It has knocked back on our doors, and the birds and the animals and the nature and the clean river that has got clean on its own without spending even a penny is giving us sort of reminding us. But I don't think we are taking any heed out of it. We are only talking about कि भाई इकोनॉमी कैसे रिवाइव करें, दुकानें कैसे खोलें और इस तरीके से पैसा जेब में आए, और we go back to square one. जी, ये तो है, ये विडंबना है. ये स्थिति ऐसी है क्योंकि लोग मतलब बहुत डर रहे हैं कि किस तरह से अपनी लाइवलीहुड चलाएंगे. लेकिन आई थिंक जहां तक मुझे लगता है, मैं भी कुछ लोगों से बातचीत कर रही हूँ, जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर हुए कि क्या जरूरी है हमारे लिए. और शायद हमारे काफी दोस्त कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि वैसे तो बहुत कम चाहिए जीने के लिए, और लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है फैमिलीज, फ्रेंड्स. तो काफी आई थिंक, बट लेकिन इंसान जैसे आपने कहा अड़ियल है, और हमको वापस जाते हुए स्प्रिंग की तरह वक्त नहीं लगेगा. अभी तो हम मतलब You are right. अभी तो हम लोग जो हैं वो we are getting stressed, but the moment this is left to us, we are going to spring back in the same
position probably again. जी I hope sanity prevails and we get to learn from a lot of from these 4 5 months that has given us an opportunity to be at home, meditate, do whatever we can amongst our own self and life and family, because family life and community life is one thing that is missing from बिल्कुल बिल्कुल and Purani Delhi has one thing that Purani Delhi and its lifestyle has taught me and my daughter also is living in community, which is missing elsewhere. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मेरा मतलब सच्चाई है कि मैं यहाँ पर आसपास इतने साल से रह रही हूँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब दोस्त नहीं है हम लोगों के, और सड़क पे खड़े होकर की बात करना ये nobody goes into. अब हम आपको बैठक का कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि चलते फिरते लोग जो है रुक जाते थे और बुजुर्ग लोग तो एक दूसरे के साथ बैठ ही जाते थे चबूतरे पे हुक्का पीने जी या बातें करने या सोशलाइज करने, और अब तो वो खैर यू कैन नॉट इमेजिन दैट एनीबॉडी रिंग्स द बेल एंड गेट्स इन, but those were good old days that anybody could come into anybody's house. That's correct. That's absolutely correct. But we still are continuing, in our house we are still continuing. We welcome, visitors we would love, people to ring our bell and come in and surprise us. That's the joy. Yeah, that's correct. I think ये मैंने बोला ना, जैसे हम लोग चांदनी चौक की मेट्रो से उतरते हैं, जैसे उतरते हैं एकदम से वर्ल्ड व्यू बदल जाता है, हम लोग खुद ही अलग से बिहेव करने लग जाते हैं, और which means कि हम एक खुलापन, even though वो बहुत संकरा एरिया है जैसे in terms of its built up space, but एक अंदर से अंदरूनी जो खुलापन आता है और आप एकदम एट ईज फील करते हैं, जहाँ जबकि वहां पर हर चीज है जो आपको, या शोर है या ट्रैफिक है या द नंबर ऑफ पीपल, बट स्टिल यू फील सो मच एट ईज, which I know that a lot of my friends and I personally experience. So that says No, a lot about. there are friends, कासिम भाई हैं हमारे, अमित मेहरा हैं, ये लोग कभी भी whenever they are frequently here in Purani Delhi, they'll call us and say कि भाई हाँ घर पे हो हमारे हैं यार चाय पियेंगे. So and this is what is still happening with a lot of our friends, who would probably not call up anybody of their acquaintance in South Delhi and tell them कि भाई हम आज इस एरिया में हैं तो we are dropping in. It doesn't happen anymore, but here it happens, and we are lucky that it happens with us. Very lucky you are, and very lucky is your daughter, who's the 6th generation and living in a house that her yes, that Let's belongs see, to her family. she's had her share of living here. Now she lives in a hostel. I don't know, when is she going to go back and hostel, and then maybe further studies somewhere else. And so she's had a wonderful share of her life in this Purani Delhi ka culture. And, we are happy. She's happy too. Great. So, thank you so much. Today we've Sure. had this So, beautiful itna journey. conversation. Your photographs were like, I think they were spot on. And thank you so much for sharing No, those I think photographs and your not experience. only mine. I think not only mine. Anybody who's been photographing Purani Delhi has got a story to tell. Each and That's every true. picture that you take will have not only me. Anybody who's photographing Purani Delhi will have stories to tell, and there is so Nausikia much mere left jaise bhi. to be spoken about. Anybody. And then photography is just an observation. That something clicks in your mind, it intrigues you, and you click it, and you keep that story. And then there is a story when which is going in your mind when you're clicking the picture, but there are many stories which come out of it. When you've taken a picture, out of these picture, many stories come out later on. So that's the fun part of photography, and especially when you're doing the street photography, or these candid pictures that you are taking. Yes, true that. All right, Ashok ji, thank you so very much. Today was Thank you, wonderful, Shagufta. splendid. Thank you, Shagufta. You take care, and a very good night to you. Good evening to all the viewers who have spared so much of time listening Yes, to us thank and you. me.
you know, anybody, I mean, anything that could, anybody could have problems with. But I think उसको on a good बोलते हैं note, ना, जैसे लास्ट में जब जाते हैं और बोलते हैं भूल चूक माफ. So I think we can do that. yeah, We yeah, can do that. yeah, And yeah. anyways, so Or anything, thank you that all has for been left watching. by. Yeah. Thank you very much, all of you. Tomorrow, for Ganga Jamni's Varsha Mangal Utsav, we have Vikram Jeet Ruprai, who's going to be talking about Baulis of Delhi. So this is in continuation of Yeah. our Varsha Mangal series. So please stay with us. Actually, return to us at 6 p.m. tomorrow, and hope there will be no delays tomorrow. Look forward to all of you. Thank you. Thank you, Have a Shagufta. great evening, Ashok ji. No, it was wonderful evening, conversing with you, and I know especially on this it just didn't wonderful feel topic like. of friendship. I think you friendship. just made it so much more rich because of your personal experiences. Thank you, Shagufta. Good night, everybody. Who's been watching us, and thank you very much. Good night. And all the best to Ganga Jamuni. Oh, thank you.